state. We'll study solid states today. Okay. So the main topics to be covered in this is first what is crystalline solid and what is amorphous solids. Then some theoretical differences between both. Then we'll learn about some terms in solid state like lattice, unit cell, lattice point, coordination number, packing fraction and stuff. And then we'll look about lattice parameters, that is crystallographic axis and crystallographic angles, that is ABC and alpha, beta, gamma, what we say. Then how there is a packing and linear arrangement, planar arrangement. Linear arrangement, there no question is asked, it's just for basic knowledge. Mainly planar arrangement and 3D models like 3D arrangement is mainly asked. So packing in planar arrangement. Then we'll look into 3-dimensional packing. Types of Bravais lattices: simple body center, face center and end center, and total there are 14 types of unit cells, but we have to study only 4 of them, I guess. Simple, body center, face center and head center. So then we'll look into each of them individually, and some ionic solids, voids, what are voids, how we calculate the radius of voids, and we'll see packing fraction and things, and then location, where are they located in different kind of molecules. And then we'll also study for, I guess, NaCl, CSCl, ZnS, Li2O and CaF2. 5 of them individually will study how about the structures, I mean how they arrange their voids and all. So this was the quick overview of the whole chapter. We'll try to complete it in an hour, like 1 hour 20 minutes maximum. So okay, let's start. The first is crystalline and amorphous solid. Yeah. So regular, what is crystalline and amorphous? I'll not write everything. I'll just read it out if because it's theoretical point. If there is something important, I'll just write that. So regular arrangement of constituent particles exist for long distances in crystalline solid, and in amorphous solid there is a regular arrangement for short distances only. Then crystalline solids are long range orders and amorphous are short range orders. Crystalline solids are also called true solids and amorphous is called pseudo solids. Melting point जो है वो crystalline वाले में fixed होता है और amorphous में वो वेरी करता है, एक रेंज में होता है. मेल्टिंग पॉइंट का ये है. उसके बाद डेल्टा एच फ्यूजन जो है वो भी फिक्स्ड होता है क्रिस्टलाइन के केस में, और एमॉर्फस के केस में वो भी वेरी करता है. वेल डिफाइंड कॉर्नर्स एंड एजेस ऑन ब्रेकिंग इन क्रिस्टलाइन सॉलिड, लेकिन इरेगुलर कॉर्नर्स एंड एजेस ऑन ब्रेकिंग इन एमॉर्फस सॉलिड. फिर एनिस्ट्रॉपिक इन नेचर होता है क्रिस्टलाइन, और एमॉर्फस जो है हमारा वो आइजोट्रॉपिक इन नेचर होता है. व्हाट इज़ एनिस्ट्रॉपिक? तो एनिस्ट्रॉपिक मतलब सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड सच एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया हमारा, फिर मैकेनिकल स्ट्रेंथ हो गया, कंडक्टिविटी हो गया. ये चेंजेस विथ चेंज इन डायरेक्शन. इट मेनली अकर्स इन क्रिस्टलाइन सॉलिड. जैसे के लिए एग्जांपल के लिए अगर हम देखें व्हाट इज़ एनिस्ट्रॉपिक, आई राइट सम पॉइंट्स हियर. एनिस्ट्रॉपिक, सो एनिस्ट्रॉपिक अगर हम देखें तो जैसे ए बी, let's say there is some arrangement as such, A B B A B B B B B B B B A B B A. Yeah, so there is some arrangement like this. तो अगर हम different डायरेक्शन से जाएं, लेट्स से कि एक इस डायरेक्शन से जाते हैं, इस डायरेक्शन से जा रहे हैं, तो हमें ए बी ऐसे मिल रहा है. अगर हम इस डायरेक्शन से जा रहे हैं, ये थोड़ा सा ऐसे जाएं तो ये ए जा रहा है सारा, तो दिस इज़ इधर पे से प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो जाएंगी. वैसे अगर हम इधर पे से जाएं बी आ रहा है इधर से, तो यहाँ पे वैल्यूज़ डिफरेंट, मतलब कि यहाँ पे डिफरेंट आ रहा है. तो डिफरेंट डायरेक्शंस में जाने से डिफरेंट हमें
जो है चेंजेस दिख रहा है। तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो डायरेक्शन चेंज करने से बदल जाए उसे हम एनिसोट्रॉपिक बोलते हैं, चेंज इन डायरेक्शन। इसका डेफिनेशन भी यही होता है कि सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड such as refractive index, mechanical strength, conductivity changes with change in direction, और उसको हम लोग एनिसोट्रॉपिक बोलते हैं। और ये मेनली जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड में ही होता है। आइसोट्रॉपिक जो है और हमारा एमॉर्फस सॉलिड जो है वो आइसोट्रॉपिक के नेचर होता है, मतलब वो चेंज नहीं करता, बस एनिसोट्रॉपिक का ऑपोजिट होता है। फिर आयनिक सॉलिड का एग्जांपल हमारा हो गया NaCl, CaF2, MgCl2। मेटालिक सॉलिड का एग्जांपल हो गया, मतलब 4 टाइप का हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड में है, क्रिस्टलाइन में है आयनिक, मेटालिक, कोवलेंट एंड मॉलिकुलर सॉलिड्स। तो मॉलिकुलर सॉलिड्स तो हमें पता ही है, H2O हो गया, H2O सॉलिड मतलब कि आइस, फिर आयोडीन सॉलिड, CO2 सॉलिड, तो ये सारे में मॉलिकुलर सॉलिड्स हैं। आयनिक सॉलिड भी हमें पता है, NaCl, CaF2, MgCl2 आयन से जो बने हैं। मेटालिक सॉलिड इज़ मेटल्स जो सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि आयरन हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया। और कोवलेंट सॉलिड क्या होता है, जो कोवलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं, जैसे कि नॉन मेटल्स वाले, जैसे ग्रेफाइट हो गया, अपना डायमंड हो गया, सिलिकॉन कार्बाइड हो गया, ये सारे अपने एग्जाम्पल हो गए कोवलेंट सॉलिड्स के। तो टोटल 4 है हमारे, आयनिक, मेटालिक सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड, मॉलिकुलर सॉलिड। और एमॉर्फस में बात करें तो आइसोट्रॉपिक हमने देखा ही। उसके बाद एग्जाम्पल्स में अगर हम बात करें तो पॉलीमर्स आते हैं एमॉर्फस में, पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC है जो हमने सुना होगा, पॉलीइथाइलीन, पॉलीस्टाइरीन, रबर, ग्लास, नाइलॉन, टेफ्लॉन, प्लास्टिक, ये सारे हमारे एग्जाम्पल्स हैं एमॉर्फस सॉलिड के। तो अगर हमें कुछ लिखना है तो अपन ये लिख सकते हैं, एक सेकेंड, इसमें लिख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कि डेल्टा H फ्यूजन जो है वो फिक्स्ड है और इसमें वेरी कर रहा है, वैसे ही यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट जो है वो अपना फिक्स्ड है और इसमें वेरी कर रहा है। फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्रिस्टलाइन जो होता है हमारा एनिसोट्रॉपिक होता है, एनिसोट्रॉपिक, और ये हमारा जो है वो आइसोट्रॉपिक होता है। फिर ये लिख सकते हैं ये ट्रू सॉलिड्स होते हैं और ये हमारे सूडो सॉलिड्स होते हैं। फिर एग्जाम्पल समथिंग, NaCl, H2O सॉलिड, SiC, डायमंड, ये सारे। और इसके एग्जाम्पल्स देखें तो PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया, पॉलीइथाइलीन, पॉलीस्टाइरीन, रबर, ग्लास, नाइलॉन, टेफ्लॉन, प्लास्टिक, वो भी लिख देते हैं, पॉलीस्टाइरीन एंड पॉलीइथाइलीन। तो ये बेसिक डिफरेंस था हमारा क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड में। कुछ थियोरेटिकल चीज़ें पूछ लें तो इन केस उसके लिए। उसके बाद अपन आते हैं इम्पॉर्टेंट कुछ टर्म्स सॉलिड स्टेट में। लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं ओरली बोलूँगी तो, क्योंकि चैप्टर में हर बार यूज़ होगा, ये सब आपको पता ही होगा। तो इंपॉर्टेंट टर्म्स इन सॉलिड स्टेट, पहला है हमारा लैटिस। तो लैटिस क्या होता है कि हमारे जो वो इन्फिनाइटली लॉन्ग 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं उसी को हम लैटिस बोलते हैं। यूनिट सेल क्या होता है, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पैटर्न विच ऑन रिपीटेशन इन 3D क्रिस्टल तो क्रिएट्स अ लैटिस। तो ऐसा यूनिट सेल, मतलब यूनिट सेल क्या होता है, एक ऐसा पार्ट जिसको बार बार रिपीट करने से हमारा पूरा लैटिस बन जाए, उसको हम लोग यूनिट सेल बोलते हैं। और लैटिस पॉइंट क्या होता है, टू कंसिडर स्फीयर इन 3D, मतलब कि पूरे लैटिस को हम जहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं कि अच्छा यहाँ पे कंसनट्रेटेड है, तो उसको हम बोलते हैं लैटिस पॉइंट। टू कंसिडर स्फीयर इन 3D location of this sphere is a unit cell is shown by a point which is called lattice point। जैसे कि हमारा ये मान लेते हैं, कोई हमने मान लिया कि कोई है, तो इसके बदले हम ये पॉइंट मानते हैं, तो ये हमारा लैटिस पॉइंट है। मतलब इस पूरे इतने गोल था नहीं बना के एक पॉइंट के थ्रू हम डिनोट करते हैं, जैसे कि यही है अपना क्यूब है,
तो हमें ऐसा बताना है कि यहाँ पे बीच में जो है ना वो एक हमारा ऐसे एटम है, तो उसके लिए हम इतना ना बना के सिर्फ एक डॉट बना सकते हैं, तो दैट इज सेंटर ऑफ मास सॉर्ट ऑफ, तो उसी को हम बोलते हैं लैटिस पॉइंट। उसके बाद फिर कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स ऑफ अ पार्टिकल, कि एक जो पर्टिकुलर एटम है या एक पर्टिकुलर जो हमारा यूनिट है वो उससे उसके आसपास कितने हैं, उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर CN। ये काफ़ी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, पैकिंग फ्रैक्शन ये लिख सकते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन। तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है कि इन अ यूनिट सेल 100% स्पेस तो भरा हुआ नहीं होता है, तो कुछ जो है वो ऑक्यूपाइड होते हैं और कुछ जो है वो एम्प्टी होते हैं। तो जो एम्प्टी स्पेस होते हैं उसे हम कंसिडर ना करें और सिर्फ जो ऑक्यूपाइड है उसे कंसिडर करें, तो वही कि कितना परसेंट जो है वो पैक्ड है पूरा। तो इन अ यूनिट सेल 100% स्पेस इज नॉट ऑक्यूपाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, सम स्पेस इज लेफ्ट एम्प्टी। Packing fraction is a fraction of the space in the unit cell which is occupied by the particle। तो कितना occupied है उसको हम बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। देखेंगे कि ऐसे निकालते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी क्या हो जाता है, पैकिंग फ्रैक्शन इंटू 100, उसको पैकिंग एफिशिएंसी बोलते हैं। वॉइड फ्रैक्शन क्या होता है, 1 माइनस पैकिंग फ्रैक्शन को वॉइड फ्रैक्शन बोलते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन प्लस वॉइड फ्रैक्शन 1 होगा अपना। और रैंक ऑफ यूनिट सेल जिसको हम Z से डिनोट करते हैं वो क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, रैंक ऑफ यूनिट सेल, इसको हम लोग Z से डिनोट करते हैं। तो ये क्या होता है कि नंबर ऑफ इफेक्टिव पार्टिकल्स इन अ यूनिट सेल, कि कितने नंबर ऑफ इफेक्टिव पार्टिकल्स हैं यूनिट सेल में, उसको हम लोग रैंक बोलते हैं। तो देखते हैं लैटिस पैरामीटर्स, दो हमारा लैटिस पैरामीटर्स है, एक है हमारा क्रिस्टलोग्राफिक एंगल्स और एक है एक्सिस। crystallographic axis and crystallographic angles। तो ये दो हमारा होता है क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस एंड क्रिस्टलोग्राफिक एंगल्स। एंगल्स में अपना अल्फ़ा बीटा गामा आएंगे और एक्सिस में अपना ABC ऐसे आएगा। तो ये होता क्या है, ये 3 एक्सिस जैसे होता है ना हमारा, तो ये हमने इसे बोल दिया A, इसे बोल दिया B और इसे बोल दिया C। और ये वाला एंगल को अपन ने लेट्स से कि A के ऑपोजिट वाला एंगल, तो ये हमारा A हो गया, ये B के ऑपोजिट ये हमारा B हो गया और ये अपना C हो गया। तो ये है हमारे क्रिस्टलोग्राफिक एंगल्स एंड क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। अब देखते हैं लीनियर अरेंजमेंट। में पैकिंग कैसे होती है, तो कुछ नहीं है, ये तो बहुत इजी है, मतलब ये ऐसे वैसे बना देते हैं। तो ओनली 1 पैरामीटर यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है और ये यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी, मतलब दो सेंटर के बीच की दूरी, इसका हम A बोलते हैं। तो A हमारा 2R के बराबर है, R + R। कोऑर्डिनेशन नंबर देखें कि एक पर्टिकुलर जो है वो कितने से सराउंडेड है, तो एक इधर है एक इधर है, इससे सराउंडेड है इससे सराउंडेड, कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा 2 आ जाएगा। पैकिंग इन प्लेनर अरेंजमेंट, तो ये लीनियर था, अब देखते हैं प्लेनर। तो प्लेनर में 1 2 3 4 5 से ऐसा कुछ है, मतलब रफ डायग्राम बनाया मैंने, इतने अच्छे से नहीं बनाया। 3 पैरामीटर्स जहाँ पे A, B और गामा आर रिक्वायर्ड टू डिफाइन द स्ट्रक्चर। प्लेनर स्ट्रक्चर कैन बी स्टेबली कैरिड आउट इन 2 वेज। तो ये 2 तरीके का हो सकता है, एक हो सकता है स्क्वायर अरेंजमेंट और एक हमारा हो सकता है हेक्सागोनल अरेंजमेंट। तो ये दोनों क्या है, मतलब थोड़े अच्छे से बनाते हैं, एक सेकेंड। इसके बाद ऐसे करते हैं कॉपी,
तो ये हमारा प्लेनर अरेंजमेंट अगर हम देखें तो ये हमारा प्लेनर है, ये ए है, ए हमारा 2r है। यहाँ पे भी गामा की वैल्यू हमारे पास 90 डिग्री है। गामा क्या बता रहा है कि इसके और इसके बीच का एंगल तो ये हमारा 90 है। कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एक पर्टिकुलर को अगर हम देखें, लेट्स से ये वाला को, तो इससे ये सराउंडेड है, इससे ये सराउंडेड है, इससे ये सराउंडेड है और इससे ये सराउंडेड है। ये इसमें टच नहीं कर रहा, ये वाला इसमें टच नहीं कर रहा, तो इसे हम नहीं लेंगे। जो जो टच कर रहा है बस वही लेंगे। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया अपना, 4 हो गया। रैंक की बात करें तो कितना इफेक्टिव एक यूनिट सेल में। अच्छा, यूनिट सेल हम कंसिडर किसे करेंगे इस बार, तो हम इसे इससे इतने पार्ट को यूनिट सेल कंसिडर करेंगे। ये हमारा यूनिट सेल है, दिस इज़ यूनिट सेल। तो अगर यूनिट सेल है तो इसका ये पार्ट, इसका ये वाला पार्ट, इसका ये वाला पार्ट 1/4 सबका आ रहा है और इसका ये वाला। तो अगर हम इसकी बात करें कि इसका रैंक कितना आएगा, रैंक होता क्या था, इफेक्टिव कितना है, तो रैंक हमारा कितना आ जाएगा, 1 नहीं आ जाएगा, 1/4 इंटू 4 बार, तो हमारा 1 आ जाएगा। तो हमारा रैंक 1 है। ये थी स्क्वायर प्लेनर। पैकिंग फ्रैक्शन वगैरह भी देख लेते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन तो कितना, तो एरिया ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल है अपॉन एरिया ऑफ यूनिट सेल इंटू, हाँ वैसे ही करते हैं। ये हम इसे डिस्क कंसिडर करें, मतलब दो चीज़ें कर सकते हैं। हम इसे डिस्क कंसिडर के भी कर सकते हैं और हम इसका स्क्वायर मतलब स्फेरिकल बॉल्स कंसिडर करके भी कर सकते हैं, स्फीयर कंसिडर करके भी कर सकते हैं। तो पैकिंग फ्रैक्शन पहले निकालते हैं डिस्क कंसिडर करके। डिस्क कंसिडर्ड एज डिस्क, इफ कंसिडर्ड एज डिस्क, ठीक है। तो अगर हमने डिस्क कंसिडर करा तो एरिया ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल अपॉन एरिया ऑफ यूनिट सेल, एरिया ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल अपॉन एरिया ऑफ यूनिट सेल, ये हमारा पैकिंग फ्रैक्शन हो जाएगा। तो एरिया ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल कितना है, पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर, हाँ ठीक है, एक है ना क्योंकि, और अपॉन में ए यूनिट सेल में ए, क्योंकि ये ए लेंथ ए है और ये हमारा ए है। तो ये हो जाएगा पाई आर, आर को हम लिख सकते हैं 2a, सॉरी ए को लिख सकते हैं 2r। तो बराबर पाई बाय 4 आ गया, दैट इज़ पाई बाय 4 की वैल्यू 0.785 होता है। तो हमारा अप्रॉक्सीमेटली बोल सकते हैं कि हमारा एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी से ईटा से डिनोट करते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी वो हमारा इंटू 100 करेंगे तो 78.5% आ जाएगा नियरली। और ये तो था जब हमने स्फीयर नहीं जिस कंसिडर करा। इफ़ कंसिडर्ड एज स्फीयर तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो आ जाएगा वो 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब। तो आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए को लिख सकते हैं 2r का होल क्यूब। तो ये आ जाएगा अपना 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 8r क्यूब। आर क्यूब से आर क्यूब गया अपना, 4 से 8 भी गया, तो ये हो गया पाई बाय 6, जिसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 0.52 होता है। तो इसकी एफिशिएंसी यहाँ से पैकिंग एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा अपना 52%। और अगर वॉइड फ्रैक्शन पूछ लिया जाए तो वो कितना होता है, 1 माइनस पैकिंग फ्रैक्शन विच इज़ इक्वल्स टू 1 माइनस 0.52 विच इज़ इक्वल्स टू 0.48। और हाँ ये तो ये था अपना सारी बातें अबाउट स्क्वायर अरेंजमेंट। अब देखते हैं हेक्सागोनल अरेंजमेंट। हेक्सागोनल अरेंजमेंट में हेक्सागोनल
अरेंजमेंट। तो हेक्सागोनल अरेंजमेंट में कैसा होता है, वेट हम पीछे से कॉपी कर लेते हैं। copy, okay, let's see if it works. So this is one more. तो ये है अपना हेक्सागोनल अरेंजमेंट। तो इसमें डिफरेंस क्या था कि वो ये वाला जो हमारा सामने सामने था उधर पे, और इसमें क्या है, मतलब ये हेक्सागन आपको दिख जाएगा, मैं दिखाती हूँ। अगर हम इसे कंसिडर करें ऐसे 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये हमारा हेक्सागन है। सो वी वर लुकिंग इनटू हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो इस केस में A इज़ इक्वल्स टू B इज़ इक्वल्स टू 2R होता है। गामा की वैल्यू 120 हो जाती है क्योंकि ये वाला एंगल जो है हमारा वो 120 है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें कि कितने से एक कनेक्टेड है, तो हमने देखा ही, अगर हम इसे देखें एक कंसिडर करें तो 1 2 3 4 5 और 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ गया। फिर रैंक की अगर हम बात करें Z, तो वो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ़ इफेक्टिव कितना एक यूनिट सेल में है, तो ये सबका 1/3 3 पार्ट तो अंदर है और टोटल 6 है, तो हमारा रैंक जो यहाँ से 2 आ जाएगा। अच्छा सॉरी 2 नहीं आ जाएगा, ये तो 2 हो गया, प्लस एक और बीच वाला भी तो कंसिडर करेंगे, 2 + 1 हमारा 3 आ जाएगा। फिर हम लोग अगर पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करें सिमिलर मैनर में जैसे कि हमने पिछली बार किया था, तो इसके लिए अगर हम डिस्क कंसिडर करके करेंगे तो पैकिंग फ्रैक्शन जो है वो π/2√3 आएगा, और अगर हम स्फीयर कंसिडर करेंगे तो पैकिंग फ्रैक्शन जो है अपना वो π/3√3 आएगा, π/3√3। π/2√3 की वैल्यू होती है अप्रॉक्सीमेटली 0.907 और 3√3 की वैल्यू होती है 0.604। वहाँ से हम पैकिंग एफिशिएंसी और वॉइड फ्रैक्शन वगैरह पूछा तो वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये तो इजी टास्क है। नेक्स्ट हमारा आता है 3 डायमेंशनल पैकिंग। ये तो 2 डायमेंशनल पैकिंग था। 3 डायमेंशनल पैकिंग में लैटिसेस होती हैं, तो टोटल 4 टाइप की लैटिसेस हमें पढ़ने हैं। टाइप्स ऑफ ब्राविस लैटिसेस, तो वहाँ 4 टाइप का होता है। एक होता है हमारा सिंपल क्यूबिक, फिर होता है हमारा बॉडी सेंटर, फिर अपना होता है फेस सेंटर, और एंड में होता है हमारा एंड सेंटर। सिंपल में क्या होता है कि कॉर्नर्स पे होते हैं। बॉडी सेंटर पे क्या होगा, कॉर्नर्स में होंगे और रूम सेंटर पे होगा। कॉर्नर्स पे तो होगा ही, प्लस रूम के सेंटर पे होगा। फेस सेंटर में क्या होता है, कॉर्नर्स पे होते हैं और फेस सेंटर पे होते हैं। कॉर्नर्स पे होते हैं प्लस फेस सेंटर पे होता है। और एंड सेंटर पे क्या होता है, कॉर्नर्स पे भी होते हैं, और 1 एटम एट एनी 2 ऑपोजिट फेस पे होगा। 1 एटम एट एनी 2 ऑपोजिट फेस, तो कॉर्नर्स प्लस, देखो कॉर्नर्स सारे में, सिंपल में भी, बॉडी सेंटर में भी, फेस सेंटर में भी, एंड सेंटर में भी। बॉडी सेंटर बोलेगा तो कॉर्नर्स और रूम्स का एक सेंटर ले लेंगे। फेस सेंटर बोलेगा तो कॉर्नर्स प्लस फेस सेंटर ले लेंगे, और एंड सेंटर बोलेगा तो कॉर्नर्स प्लस 1 एटम एट एनी 2 ऑपोजिट फेस। 1 एटम एट एनी 2 ऑपोजिट फेस। तो ये था हमारा ब्राविस लैटिसेस, सिंपल, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर एंड एंड सेंटर।
तो क्रिस्टल सिस्टम्स टोटल 1 2 3 4 5 6 7 7 आई गेस, या 7 होते हैं। क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल एंड हेक्सागोनल। तो क्यूबिक जो है, क्यूबिक तो इसमें क्या होता है, ए बी और सी तीनों बराबर होता है, हमने देखा ही। अल्फ़ा बीटा और गामा सारा बराबर होता है, और वो किसके बराबर होता है, 90 डिग्री के। इसमें सिंपल, बॉडी सेंटर और फेस सेंटर, ये तीन हमें पढ़ना है। वैसे हमारा ऑर्थोरोम्बिक होता है। ऑर्थोरोम्बिक इसमें क्या होता है कि ए और बी और सी तीनों ही बराबर नहीं होते हैं, लेकिन अल्फ़ा बीटा और गामा तीनों इक्वल होते हैं 90 के। और इसमें सिंपल, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर और हमारा एज सेंटर चारों होता है। बाकी हमारा फिर ट्राई क्लिनिक है, जैसे रोम्बोहेड्रल है, टेट्रा हेक्सागोनल है। इन तीनों में सिर्फ सिंपल नहीं होता है, सिंपल सब में ही होता है, सिंपल सब में ही होता है। मोनोक्लिनिक में और एक एज सेंटर होता है, और टेट्रागोनल में क्या होता है कि सिंपल होता है और बॉडी सेंटर होता है। तो सबसे पहले देखते हैं अपन ज्योमेट्री ऑफ क्यूब की ज्योमेट्री। तो कॉर्नर्स 6 हैं, फेस 6 है, बॉडी सेंटर 1 होता है, एज 12 है। नंबर ऑफ़ फेस डायगोनल्स की बात करें तो नंबर ऑफ़ फेस डायगोनल्स, तो 6 फेस है, 6 पे हर एक फेस पे 2 डायगोनल, तो नंबर ऑफ़ फेस डायगोनल अपने पास 12 आ गया। नंबर ऑफ़ बॉडी डायगोनल की बात करें तो बॉडी डायगोनल 4 हो जाएगा। 8 कॉर्नर्स हैं, तो कोई भी 2 कॉर्नर को मिलाएंगे तो अपना एक डायगोनल बन जाएगा। तो वहाँ से हमारे पास आ गया 4, मतलब ऑपोजिट वाले को। फिर आता है कंट्रीब्यूशन ऑफ सेंटर एटम इन अ यूनिट सेल। तो सेंटर एटम तो पूरा आएगा, तो 1 होगा। फेस वाले का 1/2 आता है, कॉर्नर का 1/8 आता है कंट्रीब्यूशन, और एज का 1/4। तो ये लिख लेते हैं, कंट्रीब्यूशन ऑफ पहला सेंटर एटम का तो 1 आएगा। फिर दूसरा हमारा है फेस वाला, तो फेस वाले के लिए हमारा 1/2 आता है। कॉर्नर्स वाले के लिए 1/8 आता है, और एज वाले के लिए हमारा 1/4 आता है। तो ये था, ये हम ध्यान रखेंगे। स्टडी ऑफ मेटालिक सॉलिड्स देखेंगे। तो मेटालिक सॉलिड्स में पहले है हमारा सिंपल क्यूबिक पढ़ेंगे। अपन को सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर क्यूबिक, फेस सेंटर क्यूबिक, इन तीनों के बारे में पढ़ना है। तो हम सीधा एक टेबल बनाएंगे, इतना करने की ज़रूरत नहीं। Z, फिर यहाँ पे पैकिंग फ्रैक्शन लिख लेते हैं, इधर पे कोऑर्डिनेशन नंबर, और यहाँ पे रिलेशनशिप लास्ट में बिटवीन A एंड R। बिटवीन A एंड R। इधर पे सिंपल क्यूबिक का लिखेंगे, फिर बॉडी सेंटर क्यूबिक और फेस सेंटर क्यूबिक, ये हमें पढ़ना है। सिंपल क्यूबिक का 1+ मतलब ये रैंक जो है वो 1 आ जाएगा। सिंपल क्यूबिक का सेंटर में तो होता नहीं, सिर्फ कॉर्नर्स पे होता है। 1/8 1/8 × 8,
तो हो जाएगा 1। पैकिंग फ्रैक्शन की बात करें तो ये 0.5, ये तो याद करना पड़ेगा, 0.52 आता है, ये 0.68 आता है, और 0. मतलब कि निकाल भी सकते हैं लेकिन याद जल्दी रहे तो सही रहेगा। ये Z वगैरह तो कोऑर्डिनेशन में तो सोच भी सकते हैं एट द इंस्टेंट। बॉडी सेंटर क्यूबिक में 2 हो जाएगा क्योंकि एक और सेंटर पे आ गया, 1 + 1 2, और फेस सेंटर क्यूबिक पे और 4 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि फेस के सेंटर पे तो हर एक का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/2 है। कोऑर्डिनेशन नंबर देखें तो 6, 8 और 12 होता है, सीधा याद करेंगे। सिंपल क्यूबिक का 6, बॉडी सेंटर क्यूबिक का 8 और फेस सेंटर क्यूबिक का 12। रिलेशनशिप की बात करें तो सिंपल क्यूबिक में तो A = 2R होता है, बॉडी सेंटर क्यूबिक में A√3 = 4R होता है, और फेस सेंटर क्यूबिक में A√2 हमारा 4R होता है, फेस सेंटर क्यूबिक। एक रिलेशन है डेंसिटी का, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। डेंसिटी हमारा क्या होता है? पैकिंग फ्रैक्शन इनटू मोलर मास अपॉन Na इंटू AQ। ये याद रखेंगे, ये बहुत ही अच्छा है, रिलेशन काफ़ी बार यूज़ होता है। अच्छा, कुछ यूनिट कन्वर्जन्स का भी यूज़ हो जाए। 1 एंगस्ट्रॉम हमें पता है 10⁻8 10⁻10 मीटर और 10⁻8 सेंटीमीटर होता है। फिर 1 पिकोमीटर हमारा 10⁻10 सेंटीमीटर होता है, और 1 नैनोमीटर हमारा 10⁻9 मीटर या फिर 10⁻7 सेंटीमीटर होता है। ये सारी बातें हमें पता है। अच्छा, हमें डेंसिटी अगर ग्राम पर ml में चाहिए तो हम A को सेंटीमीटर में लेना प्रेफर करेंगे, मतलब प्रेफर क्या, A में ही लेना, सेंटीमीटर में ही लेना पड़ेगा। एक रिलेशन है, ये वाला मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ये रिलेशन, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन ईजिली बन जाते हैं। डेंसिटी अपॉन पैकिंग फ्रैक्शन हमेशा कांस्टेंट होता है। वो कांस्टेंट क्या होता है? m अपॉन मोलर मास अपॉन Na इंटू 4/3 πr³, and it's always constant because molar mass is constant, Na is constant, and this is also a constant, so it is always equals to a constant quantity. तो it's important, I mean कोई भी किसी के भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम लोग हमने क्या देखा, ये जो था इसके पहले हमारा स्टडी ऑफ मेटालिक सॉलिड्स था। मेटालिक सॉलिड्स में हमारा सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर क्यूबिक, फेस सेंटर क्यूबिक, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। अब हम आयनिक सॉलिड्स की स्टडी करेंगे। आयनिक सॉलिड्स, तो आयनिक सॉलिड्स में क्या होगा? आयनिक सॉलिड्स, तो आयनिक सॉलिड्स कंसिस्ट ऑफ आयन्स होते हैं, उसमें कैटायन होगा और अनायन होगा। जनरली अनायन्स जो है हमारे बिगर होते हैं और वो हमारे कॉर्नर्स पे होते हैं, और लैटिस जो एंड फॉर्म्स लैटिस, और कैटायन्स जो हमारे छोटे होते हैं तो वो वॉइड्स में प्रेफर करते रहना। वॉइड्स होता क्या है? तो खाली स्पेसेस को हम वॉइड्स बोलते हैं। वॉइड्स हमारे पास 4 तरीके के होते हैं। तो वॉइड्स हमारे 4 टाइप के होते हैं, 4 टाइप्स। कौन कौन से? 2, 3 एंड 4। पहला हमारा ट्रायंगुलर वॉइड। नेक्स्ट है हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड। नेक्स्ट है हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और लास्ट है हमारा क्यूबिक वॉइड। तो ट्रायंगुलर वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड और क्यूबिक वॉइड, ये हमारे चार आयनिक ये हमारे 4 तरीके के वॉइड्स होते हैं। तो ट्रायंगुलर वॉइड्स जो है वो, अच्छा देखते हैं। तो 2D में कौन कौन से वॉइड्स हो सकते हैं? वॉइड इन 2 डायमेंशनल। तो इसी केस में जैसे कि एग्जांपल के लिए एक यहाँ पे है, एक इधर पे है, तो छोटा बन गया ना। तो यहाँ पे दिख रहा होगा ट्रायंगल जैसे यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। एक सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पे ये ट्रायंगल सा हमें फॉर्म होता हुआ दिख रहा है, इसी को हम बोलते हैं क्या? ट्रायंगुलर वॉइड। तो ये हमारा ट्रायंगुलर वॉइड है। अब इसकी कैलकुलेशन वगैरह में हम उतने डीप में नहीं जाएंगे, हम सीधा फॉर्मूला देखेंगे कि क्या मतलब कैलकुलेट करने से भी क्या फ़ायदा, हमें याद तो करना ही पड़ेगा एट द एंड ऑफ द डे। जो भी मतलब अच्छे बच्चे होते हैं जिन्हें अच्छा स्कोर आ रहा होता है या करते हैं, उन्हें याद रहता ही है,
और हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, बट कैलकुलेशन उसकी देखेंगे जिसके कैलकुलेशन में हमें हेल्प हो, मतलब कुछ मैनिपुलेट किया जा सके, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। तो इस केस में आर अपॉन कैपिटल आर की वैल्यू 0.155 आता है और ये हम रट के रखेंगे। तो हम मैंने जैसे अब सीधा सीधा आ जाते हैं काम की बात पे। तो ट्राइंगुलर 4 बताया मैंने, 1 2 3 और 4 ट्राइंगुलर वॉइड, फिर था हमारा टेट्राइडल वॉइड, टीडी वॉइड जिसे बोलते हैं शॉर्ट में, फिर ओडी वॉइड इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड, एंड लास्ट वन इज क्यूबिक वॉइड। यही था ना, क्यूबिक ही था ना लास्ट वाला। हाँ ठीक है। तो ट्राइंगुलर वॉइड में हमें सिर्फ आर अपॉन कैपिटल आर का रेशियो जानना है। आर क्या है हमारा, कैटायन है, और ये बड़ा वाला आर क्या है हमारा, अनायन है। तो आर अपॉन कैपिटल आर की वैल्यू 0.155 हमने देखा इन द केस ऑफ ट्राइंगुलर वॉइड। टीडी वॉइड में बात करें तो आर अपॉन कैपिटल आर का रेशियो हमारा 0.225 होता है। ओडी वॉइड में अपना आर अपॉन कैपिटल आर का रेशियो हमारा 0.414 होता है, और क्यूबिक वॉइड में ये रेशियो आर अपॉन कैपिटल आर का हमारा 0.732 होता है। दिस इज़ नथिंग बट √2 - 1, भूल गए तो वो √2 की वैल्यू हमें पता ही है 1.414, तो √2 - 1, एंड दिस इज़ √3 - 1, वो दोनों याद कर लेंगे। 1.55 एंड 0.155 एंड 0.225 एक जैसे ही है, थोड़ा सा 225 155 देख लेंगे। फिर साइज़ ऑफ वॉइड की बात करें, ये याद करना है, लर्न। फिर साइज़ ऑफ वॉइड की बात करें, साइज़ ऑफ वॉइड्स की बात करें तो क्यूबिक वॉइड जो है हमारा वो सबसे बड़ा होता है। उसके बाद आता है हमारा ओडी वॉइड, फिर आता है अपना टीडी वॉइड, और लास्ट में आता है हमारा क्यूबिक वॉइड, सॉरी ट्राइंगुलर वॉइड, ट्राइंगुलर वॉइड। यहीं पे कोऑर्डिनेशन नंबर भी लिख लेते हैं। क्यूबिक का होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है, ओडी का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, टीडी का 4 होता है, और ट्राइंगुलर का कोऑर्डिनेशन नंबर जो है अपना वो 3 होता है। 3 होता है, आई थिंक 2 होता है, वेट, ट्राइंगुलर वॉइड 3 होता है, सॉरी ये वॉइड जो है 1 2 और 3 चीज़ों से सराउंडेड है, 3 होता है, ठीक है। तो हाँ, और ये क्यूबिक वॉइड का साइज़ सबसे बड़ा होता है, फिर ओडी वॉइड का, फिर टीडी वॉइड का, और फिर हमारा ट्राइंगुलर वॉइड का। तो अब देखेंगे 3 डायमेंशनल में पैकिंग कैसे होता है, मतलब कैटायन भी होंगे, एनायन भी होंगे। तो अब देखेंगे कि इन केस ऑफ आयनिक सॉलिड्स कैसा है। इसके पहले तो हमने पढ़ा तो वहाँ पे आयंस नहीं थे, वहाँ पे मतलब सिर्फ एक ही था, तो वहाँ वो फिर भी हमारा इजी था। वो हमारा कौन सा सॉलिड्स था, मेटालिक सॉलिड्स, मेटल्स, जैसे कि फिर सिर्फ आयरन है तो Fe के मॉलिक्यूल्स। लेकिन अगर Na है और Cl है तो हमारा आयनिक सॉलिड है, तो आयंस है क्योंकि इसमें, तो वैसे केस में हमें कैटायंस अनायंस दोनों के बारे में जानना पड़ेगा। इसमें 2 टाइप की पैकिंग हमें पढ़नी है, एक AB पैकिंग और एक ABC पैकिंग। तो AB पैकिंग में हमारा आ जाएगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग HCP, और क्यूबिक क्लोज पैकिंग दैट इज CCP, वो हमारा ABC में आ जाएगा। तो पैकिंग इन 3 डायमेंशन, 2 टाइप का हो जाएगा। एक हो जाएगा अपना AB पैकिंग, ऐसे चलते जाएगा पैकिंग, और एक हो जाएगा हमारा ABC सॉर्ट ऑफ पैकिंग। तो जब मैं AB पैकिंग होगा उसका एक एग्जांपल है अपना HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और इसका एग्जांपल है CCP, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो देखते हैं क्या करके कि कैसा दिखता है। तो पहला आता है हमारा AB पैकिंग। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, AB पैकिंग, AB पैकिंग जिसे हम हेक्सागोनल
क्लोज्ड पैकिंग, HCP बोलेंगे, लिख देती हूँ फुल फॉर्म एक जगह, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, ए बी पैकिंग फर्स्ट विल स्टडी। तो इसका यूनिट सेल जो है हमारा हेक्सागन होता है, हेक्सागन, और इसलिए हम इसे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग भी बोलते हैं। कैसा दिखता है ये, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा होता है। हाँ, तो ये कुछ इस टाइप का हमें दिखता है। ये हमारा एक यूनिट सेल है, जो यहाँ पे हर एक इंडिविजुअली यहाँ पे जो है वो हमारे ये प्रेजेंट है, एटम्स प्रेजेंट है कॉर्नर्स पे, हेक्सागन के कॉर्नर्स पे, और बीच में इधर पे 3 प्रेजेंट है। मतलब ये कुछ ऐसा दिखता है, अगर हम रफली ऐसा बनाएं, ये कुछ ऐसा, और इसके नीचे आ जाएगा इधर पे 1 2 3 4 5 और 6, नहीं मतलब 5 ही हुआ शायद, हाँ, और ऐसे, और इधर पे भी 1 2 3 4 4 5 ऐसा, 1 2 3 4 5 6, सही है। तो ये कुछ ऐसा आ जाता है, ये हमारा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। तो यहाँ पे A इज़ इक्वल्स टू B इज़ इक्वल्स टू 2R है, C का वैल्यू यहाँ पे 4R अब इंटू 2/3। कोऑर्डिनेशन नंबर याद रखेंगे 12 होता है। Z की वैल्यू जो है 1/6 ऊपर इंटू 6 प्लस 1/6 नहीं 1/3 होता है ना कंट्रीब्यूशन, तो 1/3 इंटू 6 फिर इंटू 2 कर देंगे, और प्लस बीच में टोटल 3 आई गेस कंट्रीब्यूशन है उसका, तो 3, तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6 2 दूनी 4 प्लस 3 7, एक सेकेंड 7, अच्छा इधर पे भी है, यहाँ पे भी होता है, सॉरी, और यहाँ पे भी होता है। तो और साइड वाले का कंट्रीब्यूशन जो है वो 1/6 ही होगा ना, 1/6 इंटू 6 प्लस इंटू 2 प्लस ऊपर नीचे हाफ हाफ, तो हाफ इंटू 2 प्लस बीच में 3, तो ये हो जाएगा 1, तो 2 प्लस 1 प्लस 3, 3 2 5 1 6, हाँ 6 होता है इसका हमारा Z का वैल्यू। वॉल्यूम ऑफ हेक्सागन, इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर आता है हमारा क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्यूबिक क्लोज पैकिंग CCP, ABC सॉर्ट ऑफ जो पैकिंग होता है अपना, तो इसमें क्यूब एक बनाते हैं। तो ये कुछ ऐसा बनता है।
इधर पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ये कुछ ऐसा आता है। अगर हम इस वाले जो हमारा एक्सिस है, ये एक्सिस, ये वाला एक्सिस, इसको अगर हम सीधा करके बनाएं इधर पे, तो ये कुछ ऐसा आएगा, एक ऊपर, फिर इधर पे आएगा कुछ ऐसा, उसके बाद फिर ऐसा, उसके बाद फिर ऐसा। ये हमारा कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे z की वैल्यू की बात करें तो वो 4 आ जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे भी 12 है। पैकिंग फ्रैक्शन की बात करें तो वो हमारा 0.74 है। यहाँ पे अगर हम r कैलकुलेट करना चाहें तो 3x इज इक्वल्स टू a√3, तो x की वैल्यू यहाँ से a√3/3 आ जाता है, विच इज़ इक्वल्स टू a/√3। तो ये था जितनी बातें हम कर सकते थे इन सारी चीज़ों के बारे में। फिर हमारा लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन FCC, तो फेस सेंटर क्यूबिक, इसमें हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ होता है, तो ये हम बना के नहीं बता सकते। वैसे इफेक्टिव नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते कितने हैं, तो वो होते हैं हमारे टोटल 4। कैसे, तो एक तो हमारा हो जाएगा सेंटर पे ओडी वॉइड, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात करें फेस सेंटर क्यूबिक में, फेस सेंटर क्यूबिक मतलब कि फेसेस के सेंटर पे प्रेजेंट है और कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है। तो वैसे कि इसमें बीच में तो प्रेजेंट नहीं है, तो बीच में एक ओडी वॉइड आएगा। फिर एज सेंटर पे प्रेजेंट नहीं है, तो एज सेंटर पे ओडी वॉइड आएगा एक। तो टोटल हमारे एज सेंटर वाले का कंट्रीब्यूशन 1/4 होता है, और टोटल 12 एजेस हैं, तो 12 से मल्टीप्लाई किए 1/4 को, तो 3 आ गया, और 1 एक सेंटर पे है ही हमारा। तो फेस सेंटर क्यूबिक में टोटल हमारे पास 4 इफेक्टिव नंबर ऑफ ओडी वॉइड्स आ गए। उसके बाद फिर लोकेशन ऑफ टीडी वॉइड, FCC में टीडी वॉइड, ये था हमने FCC में देखा, फेस सेंटर क्यूबिक में हमने देखा ओडी वॉइड। वैसे अब टीडी वॉइड की बात करें तो टीडी वॉइड भी होते हैं। तो टीडी वॉइड कहाँ पे होगा, तो बीच में तो हमारा एक ओडी वॉइड है, ओडी वॉइड के जो डायगोनल है ओडी वॉइड के पास, वहाँ पे हमारा टीडी वॉइड होता है। मतलब ओडी वॉइड है, उसके बगल में एक एटम होगा और उसके बगल में टीडी वॉइड होगा, मतलब अलॉन्ग द डायगोनल ही हमारा टीडी वॉइड लाई करेगा। तो टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव ओडी वॉइड कितने हो जाएंगे अपने, आई थिंक 4 डायगोनल है, हर एक पे अगर 2-2 है, तो 8 हमारा इफेक्टिव नंबर ऑफ टीडी वॉइड होगा। और टोटल होगा वो, मतलब वो आधा आधा तो नहीं है, क्योंकि एजेस वेजेस पे तो है नहीं, बीच में है। तो टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव टीडी वॉइड 8 हो गया, और ओडी वॉइड 4 हो गया। तो 4 ओडी वॉइड एंड 8 टीडी वॉइड इन केस ऑफ FCC। तो ये लिख सकते हैं इन FCC z, जिसकी वैल्यू z का वैल्यू तो 4 है, ये तो पता है। ओडी वॉइड 4 है, और टीडी वॉइड जो है हमारा 8 होता है इन FCC। और अब HCP देखेंगे इन, ये था फेस सेंटर क्यूबिक। अब देखना है हमें हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग CCP, एक सेकेंड, तो हमारा आता है हमारा फिर HCP। तो HCP में z की वैल्यू जो है वो 6 होता है। ओडी वॉइड जो है यहाँ पे भी 6 ही होता है, और हमारा टीडी वॉइड इस केस में 12 होता है। रेडियस रेशियो कॉन्सेप्ट अब हम देखेंगे। तो फॉर स्टेबल स्ट्रक्चर, अगर स्टेबल स्ट्रक्चर है तो हम कोशिश करेंगे कि अनायन अनायन कॉन्टैक्ट एंड कटायन कटायन कॉन्टैक्ट कम से कम हो, क्योंकि रिपल्जन होगा। कटायन शुड बी सराउंडेड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ अनायंस एंड वाइस वर्सा up to permissible limit. Coordination number of cation, number of anions which surrounds the given cation, उसको हम बोलते हैं coordination number of cation। और coordination of anion क्या होता है, number of cations which surrounds
द गिवन अनायन, तो उसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अनायन बोलते हैं। रेडियस रेशियो रूल क्या है कि रेडियस रेशियो रूल देखते हैं। रेडियस रेशियो रूल, तो अगर हमारे अनायंस हैं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज से, ये भी नेगेटिव है, नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो यहाँ पे जो बीच में एक कटायन आएगा, ये हमारा कटायन है, ये हमारा कटायन है, तो R प्लस अपॉन R माइनस, तो R प्लस तो छोटा है, तो ये 1 से तो छोटा आएगा, 0.155 है, तो ये हमारा स्टेबल कंसिडर किया जाएगा, तो ये हमारा स्टेबल है। अगर हम स्टेबिलिटी और ज़्यादा चाहते हैं कि मोर स्टेबल हो, तो वैसे केस में क्या होगा कि हमारा जो साइज़ है अनायंस के वो तो है ही, मतलब ऐसा, और यहाँ पे हमारा अनायन आ जाए ऐसा, मतलब अनायन की साइज़ थोड़ी बड़ी हो जाए कंपेयर टू वॉइड, तो उसको हम बोलेंगे कि वो स्टेबल है, मोर स्टेबल, ये मोर स्टेबल है। ये रेडियस रेशियो रूल है, R प्लस अपॉन R माइनस जो है वो ग्रेटर हो जाए 0.155 से, और अगर हमारा ऐसा हो जाए कि हमारा वॉइड तो इतना बड़ा है लेकिन हमारे कटायन जो है ना और छोटा है वॉइड से, तो ऐसे केस में क्या होगा, नॉट स्टेबल। दिस इज़ R प्लस अपॉन R माइनस अगर लेस हो जाए 0.15, तो 0.155 ही मेन है, अगर लेस हो जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉट स्टेबल, ये हमारा स्टेबल नहीं है। तो हमें टोटल मैंने बताया था 5 के बारे में पढ़ना है, BF3, NaCl, CSCl, Li2O एंड CaF2 आई गेस, ZnS, Li2O या Na2O और या फिर Li2O दोनों सेम ही है, तो NaCl, CSCl, Li2O, ZnS, और हमें देखना है CaF2 के बारे में। CSCl जो है वो आई गेस NaCl के जैसा ही, नहीं सॉरी वो अलग है, ठीक है, देखते हैं। तो एक टेबल बनाते हैं, रेडियस रेशियो रेंज, रेडियस रेशियो रेंज इधर पे, ज्योमेट्री ऑफ वॉइड इधर पे लिखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, और इधर पे लिखेंगे एग्जाम्पल्स। तो अगर हमारा रेडियस रेशियो जो है 0.155 से 0.225 तक रहे, 155 माइनस 0.255 तक रहे, 225 तक रहे, तो हमारा ज्योमेट्री ऑफ द वॉइड तो ट्रायंगुलर है ही, और ये हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 3, और इसका एग्जांपल है BF3। अगर हमारा 0.225 से लेके 0.414 तक रहे, 414 तक रहे, तो वो हमारा TD वॉइड होता है, और इसका ये 4 हो गया, ZnS, CaF2 और Li2 इसके एग्जांपल्स हैं। फिर वही हमारा अगर 0.414 से 0.7 R प्लस अपॉन R माइनस 0.732 तक हो जाए, तो हमारा OD वॉइड आएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 होता है, और एग्जांपल NaCl, और लास्ट में अगर हमारा 0.732 से लेके 1 तक आ जाए तो क्यूबिक वॉइड आएगा, और 8 और CSCl इसका एग्जाम्पल हो गया। तो आई थिंक दैट्स इट अबाउट द होल चैप्टर। बाकी इंडिविजुअली इन सबसे क्वेश्चंस जैसे आएंगे, तो जैसे ट्रायंगुलर वॉइड है तो इनके बारे में तो अपने को पता ही है, तो वैसे हम देख सकते हैं। ओके।